Hello students, I am MK Vijay, your SST teacher. In this video we are going to discuss about the industrial pollution and environmental degradation. As you know, different type of pollutions are present in our surrounding, that we can divide it in various parts, and one by one we will discuss about the pollution and its causes. First is air pollution. As you know, it is caused by the presence of a higher proportion of undesirable gases such as कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. जैसा आप जानते हो कि एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण कार्बन मोनोक्साइड की उपस्थिति हवा में या सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति हवा में मानी जाती है, जो मुख्यतः डीजल के जलने से, कचड़े के जलने से, प्लास्टिक के जलने से हमारे एयर को पोल्यूट करती है. सेकेंड इज डस्ट, फ्यूम, मिस्ट, स्प्रे एंड स्मोक contain what type of particles? As you know, it has different type of things. Just in Rajasthan, dust particles are going one place to another place with the help of wind, as well as the chimneys giving CO2, and at the time of mist, as well as a spray, some pesticides we are spraying over the crops, and due to it that pollute the air also, as well as a smoke. Man-made sources of pollutant are normally industrial and solid waste. Here, man-made pollutants are also responsible for air pollution, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री के माध्यम से या फिर घरों के कचड़े को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जो कई प्रकार की गैसों को उत्सर्जित करता है और जिससे एयर पोल्यूशन आता है. एज वेल एज द नेक्स्ट पॉइंट, एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, material and the atmosphere. It gives just like lungs problem, and such type of problem is present with animal and plant also, as well as at last it affect atmosphere. Have you not heard about the Spain as well as England? When the England or when the industrial revolution was going on in England, the total smoke is used to go to Spain, and due to in big part of Spain started acid rain, and total vegetation had burned. Has burnt. In this way we can say the air pollution sometimes affect the atmosphere also, as well as material. Next is water pollution. As you know, most important water pollution factor are the industrial influence that are discharging into river. सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन फैलाने वाले फैक्टर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कहे जाते हैं.
जिससे जो कचरा निकलता है वह इंडस्ट्री रिवर में डिस्चार्ज कर देता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूट हो जाता है। यह अलग बात है, वाटर डिपोल्यूट करने की शक्ति रखता है, लेकिन इसकी मात्रा इन्फ्लुएंट की इतनी अधिक होती है कि रिवर उसको डिपोल्यूट कर ही नहीं पाता है। दे आर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सच टाइप ऑफ pollutant may be organic or inorganic, means both type of effect is seen over the water. Dyes, soaps, pesticides, fertilizer, plastic and rubber are also responsible for water pollution, because dyes, soaps, at last we are washing it with water, and in this way water is polluted. As well as the principal industry which create water pollution are paper pulp, textile, chemical, petroleum, refinery, tannery, electroplating. Such type of industries are present that is polluting water more than the other industries. पेपर पल्प, पेपर को, लकड़ी को गलाया जाता है और फिर उससे पल्प निकाला जाता है, बाकी बचे हुए भाग को नदी में फेंक देते हैं। यही बात टेक्सटाइल में होती है, उसको धोया जाता है, उसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है रंगने में, और बाकी बचे हुए रंग को हम नदी में फेंक देते हैं। खासकर केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, रिफाइनरी, टैनिंग, चमड़ा साफ करने वाला, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर मेनली पोल्यूटिंग आवर वाटर, and it is the cause of water pollution. Next is noise pollution. As you know, nowadays you have heard the screaming horn, that is known as pressure horn. It arises primarily from industry and means of transport. अभी आप अगर ट्रांसपोर्ट में देखेंगे तो बस और ट्रक में ऐसे हॉर्न लगे हुए होते हैं जिसको प्रेशर हॉर्न कहते हैं, और ये चीखता है, आवाज़ नहीं देता है। एज वेल एज इंडस्ट्री, इट इज़ द मेन काउज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल नॉइज, मैकेनिकल सॉ, इंडस्ट्री में तो नॉइज होता ही है। मैकेनिकल सॉ, आरा मशीन आप देखे होंगे, एंड न्यूमेटिक ड्रिल्स, जो छेद करने वाला होता है, पहाड़ों को तोड़ने वाला होता है, इज गिविंग अनबियरेबल न्यूसेंस। बर्दाश्त से बाहर की चीज है ये सब आवाज, और आदमी धीरे धीरे, आदमी की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। इट कैन गिव हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की शक्ति को कम कर देता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, पल्स रेट को या हृदय के धड़कने की गति को बढ़ा देता है। कभी डीजे बचे और उसके सामने से गुजरो तो महसूस होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, एंड अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट आर सीन ड्यू टू द नॉइज पोल्यूशन। And now we are going to discuss about thermal and nuclear pollution. When hot water from factory and thermal plant is drained into rain, river and ponds before cooling,
इट इज द काउज ऑफ पोल्यूशन। उसको गर्म अवस्था में ही नदी में बहा देते हैं या पौंड में बहा देते हैं। आपने सुना होगा कि बंगलौर के कई एक जलाशय में झाग निकलना शुरू होता है। ये क्या कारण है? एक कारण है फैक्ट्री के कचरे का। वास्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, nuclear and its production facility gives cancer, birth defects and miscarriage। आपने भोपाल का नाम सुना होगा, भोपाल कार्बाइन, भोपाल गैस ट्रेजेडी। वास्तव में यह जो न्यूक्लियर प्लांट होता है, इसका कचरा छोड़ करके भाग गया जॉनसन। वास्तव में उसके कचरे को सही सलामत जमीन में दफन करना भी एक कठिन प्रक्रिया है, नहीं तो वो कैंसर का कारण हो जाता है। अगर वो वाटर में मिल गया, या आप सुने होंगे चेरनोबिल रूस में, वाटर को इफेक्ट करता है और वाटर जो पिएगा उसको कैंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड because soil and water both are related। सॉइल पर कल्टीवेशन करोगे तो वाटर के सहारे फर्टिलाइजर जाएगा, केमिकल जाएगा, जो सॉइल को भी प्रभावित करेगा और वाटर भी पोल्यूट होगा। दोनों एक दूसरे से संबंधित है। डंपिंग ऑफ वार स्पेशली, यहाँ जो कचरा जमा होता है वह भी पोल्यूशन बढ़ाता है। यही कारण है उसमें आग नहीं लगाई जाती है, उसमें कीड़ा छोड़ा जाता है और वो कीड़ा उसको खा करके मिट्टी बना देता है। ग्लास फैक्ट्री और हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, पैकेजिंग, साल्ट गार्बेज, रेंडर द यूजलेस, ये सब सारी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन बढ़ाने में मदद करती है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ कैन बी remove the pollution, different type of pollution from our society, and how can we clean our environment।